नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુદેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશના સ્વાધ્યાયમાં આપણે ગાથા 121 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે અને ગાથા 122નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે. આચાર્ય ભગવાનની ગાથા 122 તેનો અન્વયાર્થ, ભાવાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનનો થોડો ભાગ કર્યો છે. શેષ ભાગ આજે લઈશું અને તે પછીથી ગાથા 123 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈશું. એટલે આજે આપણે ગાથા 123 પહેલા કરીએ છીએ. ગાથા 123 એના ઉपोद्घातમાં એમ કહે છે કે આગે इसी बात को दृढ़ करते हैं. એટલે કે જે 122મી ગાથામાં વાત કરવામાં આવી એ જ વાતને આગળ દ્રઢ કરીએ છીએ. ગાથામાં કહે છે કે દેવઃ ન દેવકુલે નૈવ શિલાયા નૈવ લેપ્યે નૈવ ચિત્રે અક્ષય નિરંજન જ્ઞાનમય શિવ સંસ્થિત સમચિત્તે. 123મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે દેવ દેવકુલે ન શિલાયા નૈવ લેપે નૈવ ચિત્રે નૈવ. એનો અર્થ છે कि आत्मदेव देवालय में, मंदिर में नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है, चित्राम की मूर्ति में भी नहीं है. लेप और चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं, पंडित जन तो धातु पाषाण की ही प्रतिमा मानते हैं. सो लौकिक दृष्टांत के लिए दोहा में लेप चित्राम का भी नाम आ गया. वह देव किसी जगह नहीं रहता. वह देव अक्षय निरंजन, वह देव अविनाशी है, कर्म जन से रहित है, ज्ञानमय शिव केवल ज्ञान कर पूर्ण है. ऐसा निज परमात्मा समचिते संस्थित समभाव में तिष्ठ रहा है. अर्थात समभाव को परिणत हुए साधुओं के मन में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है. ऐसा परमात्मा साधुओं के मन में, उनके अंतर में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है. શું કહ્યું अन्वयार्थમાં कि आत्मदेव देवालय में, मंदिर में नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है. लेप में मतलब लेप की जो प्रतिमा होती है वो उसमें भी नहीं है. चित्रात्मा की मूर्ति में भी नहीं है, चित्र में जो मूर्ति है उसमें भी नहीं है. और इसकी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि लेप और चित्रात्म की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं, पंडित जन तो धातु पाषाण की ही प्रतिमा मानते हैं. सो लौकिक दृष्टांत के लिए दोहा में लेप चित्राम का भी नाम आ गया, लेकिन वास्तव में उनको तो मानते ही नहीं है. यहाँ कहते हैं कि वह देव किसी जगह नहीं रहता. वह देव अविनाशी है, कर्म
जन्म से रहित है, निरंजन है, केवल ज्ञान आकार पूर्ण है, ऐसा निज परमात्मा समभाव में तिष्ठ रहा है, अर्थात समभाव को परिणत हुए साधुओं के अंतर में बस रहा है। आ गाथा अपने गुजराती में लईए। गाथा 123। लेप चित्र प्रतिमा वळी देवालये न देव, शिव निरंजन ज्ञानमय स्थित सम मने सदैव। એના અર્થમાં કહે છે કે પરમ આરાધ્ય આત્મદેવ, પોતાનો આત્મા, શુદ્ધ આત્મા એ આત્મદેવ, પરમ આરાધ્ય આત્મદેવ દેવાલય એટલે દેરાસર, મંદિરમાં નથી, દેવાલયમાં નથી, પાષાણની પ્રતિમામાં નથી, પથ્થરની પ્રતિમામાં નથી. એ કાળો પથ્થર હોય કે આરસનો પથ્થર હોય, સફેદ પથ્થર હોય, તો એમાં નથી. અરે એ એવા માણેક હોય ને એની પ્રતિમા બનાવવામાં આવી હોય તો માણેકની પ્રતિમામાં પણ નથી. પ્રેશિયસ સ્ટોનની પ્રતિમા લોકોને એનું બહુ મહત્વ હોય, પરંતુ એમાં પણ ભગવાન આત્મા નથી. લેપની પ્રતિમામાં નથી. પહેલાના વખતમાં એવી લેપની પ્રતિમા બનાવવામાં આવતી હતી, એટલે કે એવા ગારાની પ્રતિમા બનાવવામાં આવતી હતી. એમાં નથી કે ચિત્ર એટલે કાગળની પ્રતિમામાં નથી. એમ તે આત્મદેવ બાહ્ય પદાર્થોમાં નથી, પણ તે અવિનાશી નિરંજન જ્ઞાનમય પરમાત્મા સમભાવમાં વિરાજી રહ્યા છે, અર્થાત સમભાવમાં પરિણમેલા વિતરાગ મહાત્માઓના અંતરમાં વિરાજી રહ્યા છે. દરેકના આત્મામાં એવો પરમાત્મા પડ્યો છે, પણ જે એને પ્રગટ કરે છે એને માટે એમ કહેવાય કે એને અંતરમાં આત્મા વિરાજી રહ્યા છે. જેને એનું લક્ષ્ય જ નથી, જેને એની દ્રષ્ટિ જ નથી, જેને એનો અનુભવ કર્યો જ નથી, જેનો સ્વીકાર પણ કર્યો નથી, વિચાર પણ કર્યો નથી, એને ક્યાં પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. આપણે ભલે એમ કહીએ કે જીવ માત્ર છે તે સિદ્ધ સમાન છે, બરાબર છે, શક્તિ અપેક્ષાએ જીવ માત્ર સિદ્ધ સમાન છે, પણ એથી શું થઈ ગયું? એ તો અનંત કાળથી છે, અનંત જીવો છે, અનંત કાળથી એમ જ છે. તેથી શું લાભ? કેમ કે જે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ પોતે જ અનુભવી શકે છે. પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપને બીજો કોઈ અનુભવી શકતો નથી. એટલે જે એનો પુરુષાર્થ કરે એવા પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપને અનુભવે છે એને એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. બાકી તો એક માહિતી તરીકે એમ કહેવાય કે દરેક જીવ છે તે સિદ્ધ સમાન છે. પણ પછી બીજું વાક્ય કૃપાળુ દેવે એમાં સાથે એમ મૂકી દીધું છે કે જે સમજે તે થાય. સમજે એટલે એનો જે સ્વીકાર કરી અને એની અનુભૂતિ કરે, તો એ પોતે પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપને પ્રગટ કરી અને પછી પૂર્ણ એવી પરમાત્મા દશામાં, સિદ્ધ દશામાં સ્થિર થઈ જાય. એટલે આત્મદેવ પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ ક્યાં રહ્યા છે? પોતાના સ્વરૂપમાં છે. જેને એની દ્રષ્ટિ થઈ છે એને એ પ્રાપ્ત છે. કે છે કે એમ તે આત્મદેવ બાહ્ય પદાર્થોમાં નથી, પણ તે અવિનાશી નિરંજન જ્ઞાનમય પરમાત્મા સંભાવમાં વિરાજી રહ્યા છે, અર્થાત સમભાવમાં પરિણમેલા વિતરાગ મહાત્માઓના અંતરમાં વિરાજી રહ્યા છે. અને આગળ વધારે સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે કે જો કે વ્યવહારની અપેક્ષાએ ધર્મ પ્રવૃત્તિ માટે સ્થાપના રૂપે અરહંત દેવ દેવાલયમાં છે. આપણે સ્થાપના નિક્ષેપ કરીએ છીએ, પ્રતિમા બનાવીએ છીએ અને પછી એમાં નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે આ મહાવીર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિમા, અને એને આપણે નિક્ષેપ કરીએ છીએ અને પછી એને એ પ્રતિમાને આપણે ભગવાન તરીકે પૂજીએ છીએ. નિક્ષેપ ન કરીએ ત્યાં સુધી એ પ્રતિમાની પૂજા હોઈ શકે નહીં.
એટલે એમાં એવો નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે. જેની પ્રતિમા બનાવવામાં આવી છે એની અંદર એવો નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે. એ સ્થાપના નિક્ષેપ છે. સ્થાપના નિક્ષેપ સામાન્ય રીતે જે સિદ્ધ થઈ ગયા છે એનો પણ એમની અર્યંત દશાનો નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે સામાન્ય રીતે. અને વર્તમાનમાં જે અર્યંત છે, તીર્થંકર છે, એમની પણ પ્રતિમા બનાવીને એમનો પણ નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે. એટલે કે સિમંદર પ્રભુ વર્તમાનમાં હજી તીર્થંકર છે તો એમની પણ પ્રતિમા હોય અને એમની પ્રતિમા બનાવી અને એમની પ્રતિમા બનાવીને એમાં એમનો નિક્ષેપ કરવામાં આવે. આ સિમંદર પ્રભુ એટલે સિમંદર પ્રભુની પ્રતિમા બનાવવામાં આવે. અને બીજા આપણે ભરત ક્ષેત્રના વર્તમાન 24 તીર્થંકર ભગવાન જે થઈ ગયા એ સિદ્ધ થઈ ગયા. અત્યારે તો સિદ્ધ દશામાં છે, પણ એમની જે પ્રતિમાની પૂજા આપણે કરીએ છીએ એ એમની અર્હંત દશા એટલે કે તીર્થંકરતા એ દશા એની પૂજા કરીએ છીએ. એટલે જે પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે જ્યારે એ તીર્થંકરતા તે વખતની જે દશા જે છે એની પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે. એટલે અર્યંતની પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે. અર્યંત અવસ્થાની તીર્થંકર અવસ્થાની પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે. એમાં એવો સ્થાપના નિક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે આ પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે, કે આ ઋષભદેવ ભગવાન છે. તો એ રીતે પ્રતિમા હોય છે. કેમ કે સિદ્ધને માત્ર આકાર છે અને સિદ્ધની પ્રતિમા કોઈક રીતે બનાવવામાં આવે પણ ખરેખર તો સિદ્ધને શરીર હોતું નથી, અશરીરી છે. એટલે મૂર્તિકપણું પણ નથી. એટલે ખરેખર તો કોઈ સિદ્ધને આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે કે ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણે એમને જાણી શકતા નથી. તો અહીંયા તો વાત એ છે કે વ્યવહારની અપેક્ષાએ ધર્મ પ્રવૃત્તિ માટે સ્થાપના રૂપે અર્હંત દેવ દેવાલયમાં છે તેમ ધાતુ પાષાણની પ્રતિમાને પણ દેવ કહેવામાં આવે છે. તો પણ નિશ્ચયથી શત્રુ મિત્ર સુખ દુઃખ જીવન મરણ એ બધું જેને સમાન છે એવા વિતરાગ મહાત્માઓના ચિત્તમાં એમના અંતરમાં પરમાત્મા વસે છે. સૌના અંતરમાં પરમાત્મા વસે છે. અને જેમને માટે આ બધું સમાન થઈ ગયું છે એવા વિતરાગ દ્રષ્ટિવાળા જ્ઞાની ધર્માત્મા સાધુ એમના અંતરમાં પરમાત્મા છે. એટલે કે એમણે પરમાત્મા સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યું છે, અંશે પ્રગટ કર્યું છે અને હવે એ પૂર્ણપણે પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાના જ છે. અહીંયા એક ગાથા મૂકી છે. સમસત્તુ બંધુ વગ્ગો સમ સુહ દુઃખો પસંસણો સમલોહ કંચણો વીય જીવ્ય મરણે સમો સમણો. એનો અર્થ છે કે જે શત્રુ મિત્રમાં સમાન ભાવવાળો છે, શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય બંનેમાં જેને સમાન ભાવ વર્તે છે, એટલે કે રાગ કે દ્વેષ થતા નથી. શત્રુ પ્રત્યે એને દ્વેષ નથી, મિત્ર પ્રત્યે રાગ નથી. એટલે એને ખરેખર તો વાસ્તવમાં કોઈ શત્રુ નથી કે કોઈ મિત્ર નથી. સુખ દુઃખમાં કે નિંદા પ્રશંસામાં એક વૃત્તિવાળો છે. સુખ અને દુઃખ બંનેમાં એ સંભાવે પ્રવર્તે છે. એટલે બાહ્યમાં જેને સુખ અને દુઃખ કહેવામાં આવે છે એની અપેક્ષાથી વાત છે. વાસ્તવમાં તો બહારમાં તો ક્યાંય સુખ નથી, એ તો બધું કલ્પિત છે. એટલે જગતના બધા પદાર્થો પ્રત્યે એને સંભાવ વર્તે છે. એમાં સુખ કે દુઃખની કલ્પના કરતા નથી. અને નિંદા પ્રશંસામાં પણ પોતે એક વૃત્તિવાળા છે. એટલે કે કોઈ એમની નિંદા કરે કે પ્રશંસા કરે એથી એ નિંદાને કારણે એના તરફ દ્વેષી થતા નથી કે પ્રશંસાને કારણે એના તરફ રાગી થતા નથી. એ બધું નિંદા કે પ્રશંસા જે કાંઈ છે તે બધું પોતાનું નથી. પોતે તો એનાથી જુદો ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છે. જે નિંદા અને પ્રશંસા કરવામાં આવી છે એ તો વર્તમાન પર્યાયની અપેક્ષાથી કરવામાં આવી છે. અને એ વર્તમાન પર્યાય મારું ક્યાં સ્વરૂપ છે? કોઈ મારા વખાણ કરે કે મારી નિંદા કરે, મને કોઈ ગાળ બોલે કે કોઈ મારી સ્તુતિ કરે, પણ એ ક્યાં મારું સ્વરૂપ છે? જેની એ સ્તુતિ કરે છે,
એ પણ મારું સ્વરૂપ નથી, જેને ગાળ બોલે છે એ પણ મારું સ્વરૂપ નથી. એટલે એનાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છું. એવી જેની દ્રષ્ટિ થઈ છે, એવી જેની શ્રદ્ધા થઈ છે, અને જેને એવું પોતાના સ્વરૂપને અનુભવ્યું છે, જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ જેને અનુભવ થયો છે, એ સંભાવે પ્રવર્તે છે અને એને અંતરમાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એટલે એના અંતરમાં પરમાત્મા છે એમ અહીંયા સમજાવવું છે. અને આ સંભાવ કઈ રીતે હોય છે એનો અહીંયા વિસ્તાર કરી અને સમજાવ્યું. એટલે કે છે કે તે રીતે મુનિ સંભાવ વાળા કહેવાય છે. તો આ ગાથા 123 થઈ. આપણે ગાથા 122નો શેષ ભાગ આજે લઈએ છીએ. તે પહેલા 122મી ગાથાનું પણ સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ, જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. 122મી ગાથામાં એ વાત આવી કે જ્ઞાનીઓના રાગાદિ રહિત નિર્મળ મનમાં અનાદિ દેવ આરાધવા યોગ્ય શુદ્ધ આત્મા નિવાસ કરી રહ્યો છે. એટલે મૂળ વાત એ જ ચાલી રહી છે કે જેને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભાન થયું છે, નિશ્ચયથી જેને સમ્યક્ત થયું છે, એવા જ્ઞાનીના હૃદયમાં જે આરાધવા યોગ્ય છે એવો પોતે પરમાત્મા બિરાજી રહ્યો છે. અને પછી એમાં એ ઉદાહરણ આપીને વાત લીધી કે તે જેમ માન સરોવરમાં હંસ નિવાસ કરી રહ્યો હોય તેમ મને ભાસે છે. તો આપણે ગાથા 122નો શેષ ભાગ અને પછી ગાથા 123નો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ भाग तीजो एना पाना नंबर 450। बहुत वांचते हैं हम तो, छोटी उम्र से हैं, दुकानों पर वांचते थे बहुत। पिताजी की दुकान थी, पिताजी 59 में गए थे दुकानों पर ત્યાં। पिताजी 4 वर्ष 63 में गुजर गई, तो પછી 63 से 68 સુધી भागीदार साहिब में दुकान चलाई थी 5 वर्ष। तो निवृत्ति थी, पुस्तक में जाते शासन निर्माण से बहुत छोटी उम्र में से। तो बहुत दिखा, कबीर ना बदा ना सब का ग्रंथ बहुत दिखाए। पहले अध्यात्म कल्पद्रुम ना था, पहले वेले अध्यात्म कल्पद्रुम 1 में ग्रंथ है पहला अध्यात्म। ये देखा पर आ चीज नहीं समझ में आया। ये समय सा दिगंबर आदि शास्त्रों में थी, ये चीज नहीं की। हाँ चीज तो समय सा हाथ में आया छोटे में। नहीं सेठ होता है गाँव से, पैसा वाला 10 लाख की 70 वर्ष पहले 40,000 की उपज थी। गाम था घर में, गाम ना गराज था, पोते था नहीं अपना गरा। सेठ के द्वार आप पुस्तक और शरीर है, जिसको शरीर रहित होना तो समझदार है। 78 की भाई चलन 22, 32, 54 वर्ष। हाँ समय सार अद्वितीय चक्षु, अजोड़ चक्षु, જેની એક એક ગાથામાં આત્માને ફણકાર ઉઠાવી અંદર થી ઘણે લોકના નાથ ભગવાન તું અલ્પજ્ઞ નહીં સર્વજ્ઞ સ્વભાવી એને। હા હા રાગ તો નહીં, નિમિત્ત તો નહીં, પણ અલ્પજ્ઞ તું નહીં। હા 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 એકલો જ્ઞાન સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ સ્વભાવ આત્મા સ્વભાવવાન જ્ઞો સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ એટલે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, ज्ञा इतने पूर्ण ज्ञ स्वभाव, ऐसी तेरी चीज है ने। हाँ 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 ત્યાં दृष्टि किसकी जाए कि जिसको राग का रस न हो उसकी दृष्टि ત્યાં जाए એમ कहते हैं। हाँ 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 खिलाचंद जी सुना ही नहीं बोले 8 हजार में બધું। एक बात कहते तब तुम्हारी बात करते, एक बात कहते तुम्हारी कि भाई कहते थे भाई कि 60 वर्ष हमारा पानी में गया। एक तो थे ત્યાં હશે ને, ત્યાં ત્યાં ઉતરશે, ત્યાં
ठीक कोई भाग्यशाली भाई है क्या समझ में नहीं आया? वो भाई किला चंदी क्या कहते थे सुनकर पीछे कि अभी हमारा 60 वर्ष पानी में गई। ये બધું બહેનનો પ્રતાપ હો મારે બાનો એ ખેંચી ખેંચી લાવે એ તો હોય છે ને એમાં શું। હા 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 પુત્રની વ્યાખ્યા નથી। पुत्र इसको कहिए पिताजी को धर्म प्रमाण ये पुत्र ऐसी बात है। पवित्रता प्रमाण ये पुत्र कहिए समझ में आया? अरे अरे भाव भ्रमण तावड़े ये चीज नहीं है बाकी बदी ठीक है होता है पुण्य होता है भाव होता है भाव आया ये कहते हैं। मालूम पड़ता है ये वचन योगींद्र देव ने प्रवार्क भट्ट के कहा। पहले दोहा में जो कहा था कि चित्त की आकुलता को उगने वाला स्त्री रूप का देखना सेवना चिंता आदियों से उत्पन्न हुई राग आदि तरंगों से समूह है उनकर रहित निःशुद्धात्मा द्रव्य का सम्यक श्रद्धान घनी धीरज જોઈએ भाई भगवान पूर्णानंद शुद्धात्मा ये तरफ झुकना राग का रस कहीं रुचि छोड़ देना ये कहीं साधारण बात है अनंत पुरुषार्थ है। અને करना हो तो ये करना है बाकी तो બધા है ठीक है समझ में आया? देखना सेवना चिंता आदि उत्पन्न हुई उनके रही निःशुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान शुद्धात्म द्रव्य भगवान पूर्णानंद का देखो वो शुद्धात्म द्रव्य के अपना स्वभाव दिखाओ उसकी सम्यक श्रद्धान स्वाभाविक ज्ञान आत्मा का ज्ञान बाहर का नहीं। बड़ा बड़ा कवि हो जाता है बड़ा शासकार ज्ञाता होकर भाषण दे सकते हैं ये चीज नहीं बापू ये चीज हाँ तो कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान अपना ज्ञाता अपना आनंद होना उसका ज्ञान ज्ञान का ज्ञान स्वरूप भगवान उसका ज्ञान समझ में आया? संजय भाई હમણાં ઘૂસી ગયા ત્યાં પૈસામાં નહીં પણ હવે કે છોડવાનું છે એમ કેતો છોડે પણ હવે કેતો આમ તો પ્રેમ હતો પહેલેથી પ્રેમ તો છે દેશમાં તો પ્રેમ ઘણો હતો હે બસ એટલે આ કરવાનું આ છે બાપા રોટલા મળતા આજીવિકા ને પછી વિશેષ શું કામ હે? શ્રીમદ તો એમ કહેते શ્રીમદ રાજચંદ્ર मुमुक्षु जीव को मान आजीविका मिलती हो तो विशेष तृष्णा नहीं करनी आजीविका मिलती हो बस से करने लायक जीव अरे जी 84 अवतार में रखड़ी दुखी से बापू दुनिया भले ने राजी आपे તમે બાદશાહ છો તમે શેઠિયા છો તમે ગમે કે દુનિયા નો રિપોર્ટ ના કામ ન આવે। પ્રભુ એમ કહે કે આત્મા સંકિત વિજ્ઞાની છે લહી ભવ્યતા મોટું માન ગૌણ અભવ્ય ત્રિભુવનોપમાન ત્રણલોક નો નાથ એમ કે આ પાત્ર જીવ છે હવે એને માન કિસકા લેના હે? સમજ में आया? આંગણી નું વચન છે લહી ભવ્યતા મોટું માન ત્રણલોક ના નાથ એમ કહે મણિમા કા પાત્ર જીવ રોડો જીવ છે વગેરે વગેરે સમજ में आया? અને કોણ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન સર્વજ્ઞ એમ કે આ લાયક નથી ધન જીવ હવે એને અપમાન કેના દેખ લેના હે? ત્રણલોકના નાથનું અપમાન આવ્યું આનંદજી કે સિતંબરમાં થઈ क्या कहते हैं अनंत पुरुषार्थ है
चढ़ का संकेत में पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा थे कि नहीं, डेढ़ क्यों क्या थी? आत्मा एक कीड़ी में पर आत्मा उसको संकेत नहीं होता क्योंकि मन नहीं। आत्मा है कि नहीं? शास्त्र तो त्यान रख कहते हैं अंगूर ना असंख्य में भाग तंदुल मत होता है। तंदुल नाम चावल ना एक चावल जितना ही नहीं, चावल नो कटको छीणो हो ऐसी शरीर हो इतना, उसको भी संकेत होता है। घनी बात है। 1000 जोजनो मच होता है, तंदुल मच कहते हैं। तंदुल चावल, चावल जितनी शरीर के होगा ना, पर इसने छोटी है। तंदुल तो कुछ भाषा दिया है, लेकिन तंदुल में छेला टुकड़ो है इतना उसका शरीर हो, पर संगनी हो मनवाड़ा हो। क्या है ये पण पा सकते हैं सम्यक दर्शन, उसमें क्या है? लड़की हो 8 वर्षनी स्त्री का शरीर, शरीर क्या आत्मा है? शरीर मन ने राग से दृष्टि हटाकर भगवान पूर्णानंद का नाथ अंश पर दृष्टि लगा सकते हैं। समझ में आया? वितराग परम सुख रूप अमृत रस है। शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान बाबा ने बीज लिखती जी। स्वाभाविक ज्ञान ना भी आत्मा का ज्ञान। 2 तीसरा उससे उत्पन्न वितराग परम सुख रूप अमृत रस। अंतर में राग रहित परम सुख रूप अमृत उस स्वरूप निर्मल निर्वय निर्मल नीर से भरे हुए ज्ञानियों के मान सरोवर। ये मानस सरोवर अंदर ज्ञान सरोवर। परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है, क्या परमात्मा देव रूपी हंसला अंदर रहते हैं। है कि नहीं सेठ? कई गाथ 122 भावार्थ में पीछे हैं, चली 3-4 नीति। एक तो निज शुद्धात्मा द्रव्य की सम्यक श्रद्धा, स्वाभाविक अंतर का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के बाहर की बात नहीं। त्रियंश होता है पशु, कोई को 9 तत्व का नाम भी न आता हो, पर अंतर आनंद का नाद को पकड़ ले, 9 तत्व ज्ञान हो गया उसको। जाओ बहुत मत प्रकाश में आता है। ज्ञानियों के मानस सरोवर में परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है। अनंत गुण का सागर भगवान, ज्ञानियों ना ज्ञान में निरंतर हंस वसते हैं आत्मा। यह आत्मदेव निर्मल गुणों की उजोड़ता कर हंस के समान है। लो ये भगवान आत्मा वितराग अमृतना रसनो प्रभु पिंड, ये आत्मदेव देव कहते हैं। एक जन कहने कहीं भगवान आत्मा वारंवार कहवाय ने, क्या जैन के न तो भगवान आत्मा के। अरे अत्यारे भगवान आत्मा हो, भगवान तो त्रिकाल भगवान आत्मा है भाई। हिंदुस्तान में बात गई थी को के तो न्याय भगवान कीधो त्या तब थोड़ी ना, क्योंकि भगवान अत्यारे न હોય। અત્યારે તો આ કરો, બસ વ્રત પાવો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, પછી ભગવાન થશે। પણ ભગવાન હશે એ થશે, ભગવાન છે કે નહીં? તું હોય એમના થશે, નહીં હોય નો એમના થશે। भगवान आत्मा है तो परमात्मा पुकार करते हैं। न तुमको एक बार हम 64 की साल की बात है, संबत 64। तो मान लीजिए गई थी वडोदरा, पैलेस थी वडोदरा है ना, नजीक है। सियाजी राम गायकवाड़। तो गए थे रात्रि को देखने को गई नाटक,
अंशो एनु नाटक थी मोटू बड़ो मोटो नाटक 64 बात है। तो ये स्त्री थी, तो ये स्त्री उसको स्वर्ग में जाती थी, तो यहाँ से ना पड़ी, नहीं तेरे पुत्र नहीं तो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग नहीं मिला। ये लोग को कहते हैं नहीं मिलेगा। पर क्या है, स्त्री को लगन के बिना, पुत्र बिना मुक्ति नहीं होगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। पीछे पड़ी तो क्या करना। बड़ा नाटक था। 64 की बात है। 18 वर्ष की उम्र थी तेरे तो। जरा के नीचे जा जीवाई ने लगन कर, तो नीचे एक अंधा ब्राह्मण था, लगन किया, उसका हुआ पुत्र। तो लिया बात थी नाटक હતું ને, કોઈ પુત્ર લે એમાં તે દી આમ કહેતી હતી બાઈ निर्विकल्प बेटा तो निर्विकल्प छो, शुद्ध छो, बुद्धो छो, निर्विकल्प छो, परमानंद एम कहती थी। ये नाटक में हम कहता था, હવે બાર માં નથી કહેતો મારા ધર્મ। समझ में आया हरिचंद भाई? समझ में आया? नाटक में ऐसा कहते थे कि भाई अपने आवे से अपने समीसर में आवे से, समीसर बंद थी का सर्विस दो पीछे आता है। ये शब्द क्या सुना था व्याख्यान नाटक में। निर्विकल्पो सु, शुद्धो सी, बुद्धो सी, निर्विकल्प उदासीनो सी, राग आदि सबसे तेरी चित उदास है। एला नाटक में आवा तो अत्यारे काला केर के दिन क्या नाटक मारा फिल्मोंकारी नहीं। स्त्री आम जो है आम जो अरे आवा बाहर में शू कहवाय फोटा राखे अमदावाद ने मुंबई में। अरे नैतिक जीवन कटी गया। नैतिक जीवन ऐसा होता है, बाहर ऐसा है। सज्जन किसको कहे। पहले तो ऐसी थी कि ससरा बैठा है बाहर, वो पापड़ न खाती। पापड़ समझे ना, पापड़ खरखर खरखर ऐसा सब देखा है हमें। पिताजी बाहर बैठे हैं, दूध में पल्लारी पिचका करकर, और लड़का उपाड़े न से, पिताजी बैठे, लड़का हो आओ उपाड़े नहीं, बापू बैठे देवाई नहीं अपने। इतनी मर्यादा थी, है मर्यादा थी। હવે તમારું ઠેકાણા વિનાનું થઈ ગયું બધું। आर्यता कोने के बाबा, आर्य कुल में जन्म हुआ, यानी आर्यता नहीं नीति नैतिक के थी कैसी। आए कहते हैं ओहो आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता कर हंस के समान है। ये बाई गति थी मारा कौन क्या थी थे। निर्विकल्पो सी, उदासीनो सी, बुद्धो सी, प्रभु माता दिकरा एम के झोलाती जुक्त थी। अरे आई धर्म ना उपदेश में कोई नहीं आवे कि निर्विकल्प वितराग मूर्ति तुम है। आ करो व्रत करो, तप करो, अप्पा करो, आ करो, न खा न फना। હવે એવી વાતો ધન તો હરકરી સાંભળે ભવી પણ એ તો કરી आए तो आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता कर हंस के समान है। है ऐसे हंसों का निवास स्थान मानसरोवर है। मानसरोवर हंस रहते हैं। वैसे ब्रह्म का निवास आत्मा आनंद का निवास ज्ञानियों का निर्मल चित है। राग रहित सम्य ज्ञान में रहना हंस रहते हैं। समय ज्ञान में उसका भास होता है। આવી વાતો છે બાપુ આપો। અમરચંદભાઈ ને બિચારા આવું થઈ ગયું, નહીં તો બહુ રસ એને આવું સાંભળીને તો બપોરે આવે બપોર કેટલી વાર। આજ મહારાજ બહુ આવી વાત બહુ રસ છે। હાડ મારે ગઈ હમણાં કોઈ હાડના દર્દ ઘણા સાંભળીએ છીએ। हंसों का निवास स्थान मानसरोवर, ब्रह्म का निवास स्थान ज्ञानी को निर्मल है, ऐसा योगेंद्र देव का अभिप्राय है। मुनि दिगंबर संत है उसका अभिप्राय है। विशेष कहेगा परमात्मा प्रकाश 123 गाता है ना।
आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं। गाथा देव न देवले नवी शिले नवी लिपई नवी चिति अखो निरंजनो नाणमो सियो संठ्यो समतिथि। आत्मदेव देवालय में नहीं है। भगवान आत्मा जी है ये कहीं देवालय में नहीं है। देवालय में तो व्यवहार निक्षेप है, प्रतिमा। आत्मदेव देवकुले नहीं, शिलायाम नहीं, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं। आत्मदेव न्याय क्या है? और लेप में भी नहीं, चित्राम की मूर्ति में भी नहीं। लेप और चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं। जैन धर्म में ये व्यवहार नहीं। पंडित जन तो धातु पाषाण की प्रतिमा मानते हैं। समझ में आया? चित्रामण कागज ने ये नहीं आना पड़ते हैं, नहीं हाँ, ये फोटो ही नहीं, ये चित्रामण है। धातु नहीं पाषाण प्रतिमा क्या पत्थर है? धातु पाषाण की प्रतिमा मानते हैं। जैन दर्शन में व्यवहार हो तो ये धातु पाषाण की प्रतिमा है, ये व्यवहार है। शुभ भाव में निमित्त है, पुण्य बंध का कारण है। व्यवहार आते हैं पर परमार्थ है देव क्या नहीं, देव तो आई आए। ये व्यवहार देव, निश्चय देव। समझ में आया? ये तो प्यार लगी चलते आते हैं ना मोक्ष जी का पौड़ में, देव ददाती थी देव हो, ऐसा आता है पाठ। देव देते हैं क्या? धर्म अर्थ ने काम ने मोक्ष, ऐसा पाठ है उस पौड़ में। अर्थात सर्वज्ञ परमेश्वर है जो मारे कहा, ये प्रमाणे जिसको अनुभव हो तो उसको मोक्ष भी मिलते हैं, और यदि भक्ति आदि का राज रह गया हो तो उससे लक्ष्मी ने विषय भी मिलता है। ऐसा पाठ है अष्टपाउड़ में। अष्टपाउड़ है ना यार, उसमें ऐसा है। देव ददाति थी देव, बहुत पाउड़ में है। देव तो है पर व्यवहार देव है। लेप ने चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं। पंडित जन तो धातु पाषाण की प्रतिमा मानते हैं। એટલે જૈન દર્શનમાં ચિત્રામણ ને ફોટાને પણ માન નથી એમ કહેતા અહીં તો। समझ में आया? व्यवहार में ये मान नहीं, धातु नहीं। आज वो ने कल चोरी हो गई नहीं अजमेर में, अजमेर में बड़ी चोरी हो गई है। अजमेर में 1000 तोला की चांदी के मंदिर में भागचंद जी ने ना सब दुकान बंद रखी थी। अभिषेक हुआ थे ना 2-4 दिन पहले, ये सब प्रतिमा में कोई अंदर घुस गया, देख लिया नहीं क्या अंदर देखे नाम ऐसा पे कोई सरदार बैठो सके। ये 1000 तोला नी चांदी नहीं, 25 शेर नहीं, 25 शेर लगभग 16,000 20,000 ની મૂર્તિ। 3 છત્ર એક મૂર્તિ નહીં है। ખરેખર તો ધાતુ માં એ બહુ ચાંદી ને એને અત્યારે સાદી તો વાત તો છે આ લોકો હે, પણ એ ઠીક નહીં અત્યારે આ કાળ માટે ઠીક નહીં। ચાંદીના પ્રતિમા કે એ બધા ચાંદીના શું કહેવાય ચમર ને
લોકોનું મન થઈ જાય ચોરવાનું. પિત્તળ પણ કોઈ વખતે પિત્તળ સોના કો માનકર લઈ જતે, પિત્तल नहीं ले जाता, खबर है ना. आए तो दो कहना है पाठ कि लेप ने चित्राम की प्रति लौकिक जन मानते हैं, बनाते हैं. ज्ञानी जन तो धातु ने पाषाणिक प्रति मानते हैं. ये लौकिक दृष्टांत के लिए दुआ में लेप चित्राम भी नाम आ गया. खरीखर तो ये कहीं जैन दर्शन में होती नहीं. वह देव किसी जगह नहीं रहता. तो आत्मदेव क्या रहते हैं? ये भगवान अविनाशी आत्मा अंदर है, अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है. अभी हो यहाँ पर किसको? जिसकी निर्विकल्प दृष्टि में संभाव में दिखने में आता है उसको. समझ में आया? आएगा दुखो कि कर्मांजन से रहित ज्ञानमय, केवल ज्ञान એટલે केवल पर्याय नहीं, केवल ज्ञान, एकला ज्ञानमय भगवान आत्मा है. ज्ञानमय विग्रह, ज्ञानमय उसका शरीर है आत्मा का. एक तो प्रज्ञा ब्रह्म, एक ज्ञानमय परिपूर्ण है. ऐसा निज परमात्मा शिव, ये शिव है आत्मा. समचित संस्थित. हमें क्या कहते हैं? क्या रहते ही कि जिसका वितरागी परिणमन हुआ समचित, उसमें देखने में आता है. क्या रहते हैं? समझ में आया है? समचित संस्थित. संभाव में तीसरा है. संभाव को परिणित साधु के मन में विराज रहा है. जिसकी निर्विकल्प वितराग दशा हुई, ये वितराग दशा में ऐसा आत्मदेव संस्थित है. समझ में आया? अच्छा, देव तो है, पर किसको ये देव? कि जिसकी दृष्टि राग से हटकर वितरागी दशा की दशा में समुचित जहाँ संभाव हुआ, राग आग दाह है सदा ताते समामृत से ही है. राग है तो दाह अग्नि है, चाहे तो शुभ राग हो. यहाँ तो समामृत संभाव पर्याय में प्रकट करके वितराग भाव में ये आत्मा संस्थित है, जहाँ देखने में आता है. समझ में आया? भावार्थ. यद्यपि व्यवहार नहीं कर धर्म की प्रवृत्ति के लिए बाहर नहीं. धर्म शब्द पुण्य शुभ भाव. स्थापना रूप अनंत देव देवालय में तिष्ठ है. स्थापना रूप अनंत देव देवालय में से धातु पाषाण की प्रतिक्रमा देव कहते हैं. वो बे निकाल दिया चित्रामण लिख. धातु पान प्रतिमा देव कहते हैं. तो भी ये व्यवहार है देव. शुभ भाव में, भक्ति में, पूजन में, शुभ भाव में देखते हैं. ये शुभ भाव है, उसको देखने में पुण्य है, व्यवहार है. जब तक वितरागता न हो तब तक ज्ञानी को भी निश्चय देव का भान हो में पण ऐसा शुभ भाव व्यवहार पूजा भक्ति का है. समझ में आया? ये व्यवहार है, અને વ્યવહાર ही बंद का कारण है, पर आया भी ना रहे. आज बात है. पाછા ત્યાં ધર્મની જે नहीं आया सितंबर में तैसे कहते एक देवचंद जी आश्रव चाल घटे संबर वधे जी ये पाठ है. भगवान ना दर्शन ने पूजा थी, आश्रव भाव घटे संबर वधे. संबर फवर के सत्या ये देवचंद जी कहते. પછી લઈ ગયા बहुत ખેંચીને ક્યાંય લઈ ગયા. એકે ઉડાડી દિયા ને એકે ખેંચીને. એકે ઉડાડી દિયા.
मैं पहले कहा था एक बार बासी के सामने, बासी का चौमासा था उठवाण, बासी 50 वर्ष हुआ। तो एक रात वो बैठे थे उसमें पर हमारी बात सुनते थे लोग शांति से कि जो भाई ऐसा हुआ आया स्थानकवासी डेरावासी में कि एक दो था मित्र, तो एक मित्र 100 रुपये दिया था उसका बाप, एक लड़का का बाप को, 2 मित्र 100 रुपये दिया था, तो 100 सच्चा था, पर 100 पर 2 मींडा चढ़ा कर मांगा 1000 तेरा बाप ने मेरा बाप आप्या है। बोले कि 12 वर्ष तुम જોઈશ ચોપડા દેખ્યા 100 तो है, पर 100 कबूरी तो 1000 मार्ग सोनी ना पड़ी है नहीं। ये भाई नहीं बोलो तुम्हारे कौन है घोड़वा वाला મણિભાઈ હતા, તમે હતા ત્યાં એ વખતે? નહીં, રાત્રે બેઠા હતા, બાસીની સાથ, ચોમાસું વટવાનું હતું ને, ત્રણેય પાછળ માણસો આવતા મોટ બહાર જગ્યા 50 હે બહાર કેવા? હા હે ગાંધી જંકશન નહીં નામ ઠાકરેભાઈ ધર્મશાળા છે ને, ત્યાં હરિયાસન વ્યાખ્યાન માણસ ત્રણેય પાછળ આવતું ને. અમારે તો કઈ એમ કઈ કોઈ સંપ્રદાય નહોતા, ત્રણેય આવતો, દરિયાપુરી, સુંદરમોરા, બધા 50 वर्ष पहले का छो बारिशनी साथ है। आई तो कहते हैं किसका मन में रहते हैं ये व्यवहार प्रतिमा है खरी, समझ में आया? पर वो प्रतिमा ऊपर पीछे लेप ने दागीना ने ऐसा चढ़ा दिया ने, बहुत 100 ऊपर 1000 मांग्या, पाछा 100 सच्चा था, 2 मींडा चढ़ा कर मांग्या थे। પછી જોઈ કે 100 તો લીખતે પણ જો માગશું હા કે શું 1000 માગે છે નહીં એમ કીધું। શ્વેતાંબર ડેરાવાસીએ ભગવાનની પ્રતિમા ઉપર આંગી ના ચઢા દિયા, 2 મીંડા વધારે હે મારા न्याय के तो वितराग मूर्ति है, ये तो निमित्त स्वभाव, मैंने कई बातें होता नहीं सर। जैसा वितराग हो ऐसा हरीसा में, जैसी सामी चीज हो ऐसी हरीसा में दिखती है कि दूसरी दिखते, ऐसा जैसा भगवान था ऐसा प्रतिमा होना चाहिए। समझ में आया? आई तो पक्षनी बात नहीं है तो सच क्या है, समझ में आया? ये उड़ा दिया एक जना है तक ना, ये है ही नहीं, तो एक जने मींडा चढ़ा दिया मुगट में, ऐसा हो गया कि तो भाई 50 वर्ष पहले क्या था उसमें थे हम, तो हमारा ऊपर बहुत भरोसा बहुत नहीं, महाराज क्या कहता है कहीं तो चीज को वो मारा तो महाराज ने श्रद्धा ली भाई। महाराज तो ऐसा है भाई जिसको निक्षेप व्यवहार आता है, व्यवहार से हम भी कहने में आता है, जिन प्रतिमा जिन सार की वंदे बनारसी ताए, लेश दूषण हो तो वंदाय नहीं, ये सफा है। बनारसी दास में बनारसी विलास ग्रंथ है ना, सब देखे ना। वितराग प्रतिमा तो जैसे हरीसा में सामे मानस ऐसा देखे कि बारी में ऐसा अंदर में दागिना देखे न कपड़ा देखे, ऐसा चित्र पड़ता है उसमें। ऐसे वितराग जैसा है ऐसा बिंब प्रतिबिंब ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? कपड़ा नहीं, आंगी नहीं, अत्तर, थोड़ा तो अत्तर लगाते हैं, अत्तर रखे ना, अत्तर करें ऊपर कपड़ा चौंकते हैं, अरे आते कहीं भाई मार्ग आवा नहीं, मार्ग तो ये इधर राज पड़ते हैं, वितरा की मूर्ति नहीं है। ये वितराग की मूर्तियां कहते हैं कि धातु पाषाण की होती है, चित्रामन ने ये फोटा आदि होता नहीं, तो भी निश्चय नहीं कर तो यहाँ भगवान विराजते हैं कि इसको जिसका संभाव दशा प्रगति है, इस संभाव में तिष्ठ है भगवान। समझ में आया? साधु संत विशेष साधु की बात लिया है, साधु वितराग की मूर्ति होती है। साधु तो अंदर वितराग दशा आनंद की छौल उठती हो,
आनंद 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 आनंद। ये महाव्रत का विकल्प आता है, यो भी उसको दुख रूप लगे। ये मुनि पण बापू मुनि एटला धन अवतार ने जेने सफल अवतार ए मुनि नाम अंतर में संभाव राग से भिन्न होकर वितरागी समामृत परिणाम प्रकट हुआ है। ये परिणाम में ये आत्मा पिष्ट है, देवालय में नहीं। समझ में आया है? तो भी निश्चय नहीं कर, शत्रु मित्र ऊपर संभाव जेने अंतर में है, सुख दुख संयोग अनुकूल के प्रतिकूल में संभाव वितराग वितराग वितराग। तो आत्मा अवलोकन है ना ग्रंथ, उसमें ऐसा लिया है कि मुनियों तो वितराग का ही उपदेश दे। मुहु मुहु ऐसा पाठ है, वितराग वितराग राग से भिन्न होकर वितरागता प्रकट हो गई। ये मुनि राग से लाभ व्यवहार से लाभ रूपणाम इच्छा दृष्टि के है, मुनि की नहीं है। आत्मा अवलोकन है, ओ दीपचंजन करते हैं, दीपचंजन है अनुभव प्रकाश में, चिद विलास में, उसमें इसका है सब ग्रंथ ही है। उसमें ऐसा है, कड़ी है उसमें श्लोक कि मुनि है मुहु मुहु वारंवार वितराग भाव के उपदेश दी, निमित्त और राग से हटकर स्वभाव में आ जा, ऐसा उपदेश दी। समझ में आया? ये भी बात नीति ने बहुत सरस। ये दीपचंद जी चिद विलास अनुभव प्रकाश बहुत सरस बनाया है। एक पंच संग्रह है अध्यात्म पंच संग्रह पुस्तक बड़ा है, वो सब यही है, सब देखा है नहीं। के छे कि देव इसमें विराजते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण जिसमें समान है। जीवन हो तो ठीक, देह छूट जाए तो ठीक। जैसे वितरागता वर्ती अंदर में, ऐसा जिसमें समान है। अने वितराग सहजानंद रूप जो दशा है, वितराग त्रेवी पहली त्रेवी हो, पहली त्रेवी में आता है कि नहीं अंदर आया है? आई वितराग सहजानंद रूप, सहजानंद एक रूप एम देख जाइए, ત્યાં रूप है ने, वितराग सहजानंद एक रूप, ऐसा एक नाखना चाहिए। एक रूप संस्कृत में ऐसा है, वितराग सहजानंद एक रूप परमात्मा तत्व। क्या कहते हैं? भगवान अंदर वितराग सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद एक रूप, भेद नहीं जिसमें, ध्रुव एक रूप, ऐसा परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान, ऐसा परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान, ऐसा परमात्मा तत्व का सम्यक ज्ञान, ऐसा परमात्मा तत्व का चारित्र रूप, स्थिरता अंदर रमणता, आनंद में रमना, ये चारित्र अभेद रत्न में लीन, ऐसे ज्ञानियों के समचित में परमात्मा तिष्ठता है। समझ में आया? जीवतर मरण सुख दुख शत्रु मित्र सब में जिस तृण कषाय का अभाव हो गया, वितराग प्रकट दशा हुई। ऐसी वितराग सहजानंद, सहज आनंद एक रूप परमात्मा तत्व का सिद्धांत जिसको प्रगटाया अंदर में, ज्ञान अने चारित्र अभेद रत्न लीन है, ऐसे ज्ञानियों के समचित में परमात्मा तिष्ठता है। समझ में आया? मुनि ने व्याख्या करी, मुनि कैसा होता है? ये तो वितराग सहजानंद एक रूप परमात्मा तत्व सम्यक श्रद्धान
એની આત્મા એ ત્રિકાળ વસ્તુની શ્રદ્ધા, ત્રિકાળી વસ્તુ का ज्ञान અને त्रिकाली वस्तु में चारी स्थिरता, ये तीनों अभेद रत्नत्र में, ये निश्चय और अभेद रत्न में लीन ऐसे ज्ञानियों के समचित में वितरागी परिणाम में ये परमात्मा तिष्ठ रहा है। समझ में आया? वितरागी परिणाम प्रगटा है ना, ये वितरागी परिणाम उसके आश्रय से प्रगटा है, तो ये वितरागी परिणाम में ही परमात्मा स्थित है। देवालय में नहीं। समझ में आया? श्रीमद में आवे छे ने, चैतन प्रतिमा था, चैतन प्रतिमा था, आवे छे ने। विकल्प जी दयादान व्रत आदि का है, ये तो राग है। उससे रहित होकर वितरागी परिणाम में, कैसा वितरागी परिणाम? ऐसा परमात्व की सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ऐसा संभाव में भगवान विराजते हैं। संभाव में आत्मा का अनुभव होता। भाई बात भाई, ऐसा है न जगह भी समचित को उपन्नित हुई मुनियों का लक्षण कहते हैं। प्रवर्तन सार अध्याय 3 गाथा 41 अंदर है संस्कृत में। ये तेजी लिखी दी पहले थी, उसमें लिखा है प्रवर्तन सार अध्याय 3 चरण योग गाथा 41 में। ऐसा जिसके सुख दुख समान है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग में वितरागता है जिसको। शत्रु मित्रों का वर्ग समान है, वर्ग पाचल है। शत्रु भी बहुत ने, मित्र भी बहुत। वर्ग है ना, वर्ग ना बहुत। एकड़िया ना वर्ग ने नहीं कहते, पहलो वर्ग, बीजो वर्ग, तीजो वर्ग, एम एक नो है, घना हो। ऐसे शत्रु भी बहुत हो, मित्रों भी बहुत हो, दो में समान है। ज्ञेय है तो जानने लायक, कोई शत्रु मित्र है नहीं। ऐसी संभाव वितराग परिणति में वितराग परमानंद स्वरूप दिख रहा है। अपने ऐसी वितरागी परिणति में, पर्याय में वितराग स्वरूप भगवान दिख रहा है। समझ में आया? ये राग से नहीं जानने में आता, हम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय से भगवान जानने में नहीं आता। निश्चय रत्नत्रय, वितरागी परिणति जिसमें विकल्प को अवकाश नहीं। ऐसा वितराग परिणति मंत मुनि को ही परमात्मा तीसरा है। नारद क्या समझ में आया? आप प्रतिमा होती है बाद में शुभ भाव, अशुभ से बचने को, क स्थान से अड़ा स्थान से बचने को शुभ भाव होता है। ये संबर जरा नहीं, धर्म नहीं, पर ऐसा भाव शुभ आता है। व्यवहार है, निश्चय ऐसी दृष्टि हुई अनुभव तो उसका ऐसा व्यवहार होता है। पर ये व्यवहार पुण्यबंध का कारण है। चाहे तो लाख मंदिर बनावे, करोड़ों रुपया खर्चे, हमेशा 24 कलाक भगवान पाए बेही रहे, ये शुभ भाव है। परकाश्रय हो ना, शुद्ध भाव में तो स्वकाश्रय है, शुभ भाव में परकाश्रय घुमाट है। प्रतिमा નથી એમ માનना वो भी विरोध है, અને प्रतिमाना दर्शन से धर्म होता है ये भी विरोध है।
તો બોલાય હા એ બધા સ્થાનકવાસી છે હતાની વાત છે ને તો સ્થાનક તો આ હે કે છે પરમાત્મામાં વાત કરે સ્થાનકવાસી વિતરાગ માર્ગમાં તો સત્ય હોય ચાલશે હું એક પણ ક્ષણ નહીં ચાલે એવો માર્ગ વિતરાગનો ત્રણ લોકના નાથ જૈનેન્દ્ર દેવ ફરમાયા प्रशंसा निंदा समान है मनी की वितराग दिशा में प्रशंसा निंदा लाख प्रशंसा करो तो संभाव है अभिनंदन दे मोटा मोटा तो तुम्हें क्या है तो जड़ जड़की पड़े संभाव जिसको वर्ते निंदा करोड़ हो जगत में तो पण जिसको अंतर में संभाव है कोई साथ विरोध नहीं पत्थरों सोना समान है जंगल में गया हो અને જરી પાણીનો રેલ 10 સાફ કરતા ગઈ એમાંથી નીચે જરૂર દેખાય હીરાના કરોડ હીરા ભર્યા ને જરૂર સોના ને પથ્થર સરખા है ऐसा न हो कि लाख थोड़ा લઈ લઈએ આપણે મંદિરમાં કામ આવશે પણ ખાનગી ઉપાડી જાય કોણ ન્યા કોણ ન્યા એ આવે છે સાધુ પણ તો ક્યાં છે આ તો કોઈ ગ્રસ્ત હોય ને પણ સંભાવ છે એને પીટ્યો છે એ તો આમ ચરું દેખે તો એ પથ્થર જગત ની ચીજ દૂર હે અને પથ્થર દેખે કાંકરા આળસ પાણ गिरा संभाव है और जीवन मरण जिसके समान है ऐसा संभाव का धारण करने वाला मुनि होता है ऐसा मुनि का ज्ञान में आ भगवान तिष्ठा है एम कहते हैं समझ में आया क्योंकि दृष्टि में आवे तो तिष्ठा कहने में आता ने वस्तु संभाव में संभावित चीज दृष्टि में ना आया तो रात सिद्ध कहां से आया सिद्ध है आया कहां से क्या किया ये समझ में आया वितरागी परिणति में वितराग मूर्ति परमात्मा आत्मा दृष्टि में ज्ञान में आया तो त्या आत्मा संभाव में है एम कहने में आता है और जिसको संभाव हुआ नहीं અને संभाव में परमात्मा है दृष्टि में आया नहीं संभाव बिना तो उसका आत्मा में ये देह है ये है ही नहीं उस आत्मा में तो राग है पुण्य परिणाम है उसमें इसकी जो रुचि है तो इसका आत्मा में तो राग है राग माँ आत्मा जनाते नहीं राग में तो परिदेव जानने में आता है समझ में आया वितराग ओहो गजब बात है वितराग सम परिणाम शत्रु मित्र जीवन मरण निंदा प्रशंसा सुख दुख सब में जिसको ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ है ऐसा वितरागी मुनि का चित्त में ज्ञान में भगवान तीसरा है समझ में आया अथाने से संभाव के धारक शांति योगीश्वरों के चित्त में देव ऐसे संभाव के धारक सम्यक दर्शन अनुभव सहित तीनों लिया है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अभेद रत्न त्रयी ऐसा वितरागी परिणाम में भगवान वितराग स्वरूप परमात्मा स्वरूप वितराग परिणाम में तीसरा है त्या दिखने में आया त्या रहा है राग से ही दिखने में आता समझ में आया
ऐसे भाव के धारक संभाव के शांत चित योगी स्वरूप, योगी स्वरूप में जोड़ा हो गया है आनंद का नाथ में। आ लीन लीन शांत चित योगीश्वर चित में चिदानंद देव तिष्ठता है। उसका सम्यक ज्ञान में वितराग भाव में चिदानंद देव तिष्ठता है। चिदानंद देव है भगवान। चैतन्य मूर्ति प्रभु है, चैतन्य प्रतिमा वितराग मूर्ति है। ये संभाव में दिखने में आता तो संभाव में परमात्मा है, तीसरा है, ऐसा है। देह देवालय में नहीं, देह देवालय में तो मूर्ति प्रतिमा भी। समझ में आया? ये 123 है और 2 श्लोक विशेष है। ये रीते ગાથા 122 તથા ગાથા 123 એટલે 123 નો પહેલો ભાગ છે, એનો વિસ્તાર પૂરો થયો। 123 માં બીજા પણ 2 શ્લોક છે, 123(2) અને 123(3). તો એ બધું આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। सुखधाम अनंत सुसंग